Welcome students. Today we'll be studying the chapter limits and derivatives, which is in class 11th in every board. Now what do you mean by limit of function? Okay, so when we say that limit fx x tending to a is equal to L, what does this imply? I repeat, limit fx function is fx is defined, clear, for as x tends to a, we say that x approaches a or tends to a, limit is L. This means that as x approaches value a, okay, the function fx approaches value L. I repeat, what does it mean simply? It means simply that as x approaches value a, function fx approaches value L. Now let me take you a small example, clear? So when I say that fx is equal to x square minus 4 upon x minus 2, and I want to compute what is the limit of fx as x tends to value 2. If you put 2, see, if you put 2, see, x is never 2, x is approaching value 2. Are you getting it? X is approaching value 2. If I put x2, what do I get? Suppose I want to compute f2. See the problem. 2 square minus 4 upon 2 minus 2. What is this? 2 square is what? 4 minus 4 upon 2 minus 2. This is 0 by 0, which is undefined. So division itself by 0 is undefined. Clear? So I never get. So that means that x can never be 2. Clear? If I put x as 2, it will come out to be 0 by 0, which is what? Undefined, or we also call it in mathematics, we call this as indeterminate form, that which cannot be determined. Indeterminate form. Clear? So let's try to compute. So you see that x is equal to 2. Clear? Function is undefined. So it is written. So in the books it will be written that fx is equal to x and x is not equal to 2. So this is how the function is defined. Now you have to find, now understand, limit of fx x tending to value 2. That means that x is very close to 2. Now let us understand. Okay, suppose I've got x here and I've got, say, x as 1.9, which is a point close to 2, and I want to compute fx. Clear? What will be this fx? Tell me. देखिए ध्यान से, x मेरा 1.9 है और मैं fx निकालना चाह रहा हूँ, तो fx क्या होगा? 1.9 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.9 माइनस 2. क्लियर? तो व्हाट विल दिस बी? 3.61, 1.9 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 0.1, 1.9 माइनस 2. ये क्या होगा? माइनस 0.39 अपॉन माइनस 0.1. सी माइनस माइनस कैंसल्स. And this is what? 3.9. At 9 upon 10 if you multiply 100 on both sides. So what is fx? This value x square minus 4 upon x minus 2. If I put x as 1.9, what do I get here? Minus 0.39 upon this 3.9. So when I put this, I get fx as 3.9. See, understand? Clear? Now let me come and you see, now here is the value 2. I'll show you on the number line. Here is the value 2, clear? And x is not equal, because if I put x equal to 2, the function is not defined. The function is not defined at all. So it says that this is the question, that find the limit of fx when x is not equal to 2 and fx is what? X square minus 4 upon x minus 2. Now what is this? This is a point, clear? 1.9. This could be a point, say 2.1. This could be point 2.2 and so on, similarly. So when I find here I find that fx is what? 3.9. Now let me come more closer. I want to say 1.95. Where is the 1.95? इसके बीच में होगा. Clear? Now I put here 1.95. I'm just telling you the value. And when I put x 1.95, then I get this as 3.95. You can calculate 1.95 square. 1.95 square, it will be 3.8025. Clear? Minus 4 upon 1.95 minus 2. Now I put x as 1.99. See, ध्यान देखिए 1.99. I will get, now 1.99 is quite close here. See, 1.99. I am approaching now to more closer to. See, as I am going from 1.9 to 1.9, I am coming more closer to. So what do I get if you compute this? So you have to do what? 1.99 square minus 4 upon 1.99 minus 2. And you will get, I have just done the calculation, you get as 3.99. See, what is fx? When x was 1.9,
It is 3.1. When x is more closer to 1.95, now x is very closer to 1.99 और 2 का डिफरेंस कितना है? 1.99 and 2 का डिफरेंस how much it is? कितना है बताइए? 1.01 minus 0.01. Yes or no? 2 clear. 1.99 minus 2 is what? Minus 0.01. So this is called approaching what? Limit clear from the left. Left मतलब क्योंकि 2 आपका है. Anything less than 2 when you are coming less than 2 and then what? I'll be coming what? More than 2. तो 2 पे हम आएंगे लेकिन पहले लेफ्ट से आ रहे हैं. लेफ्ट से मतलब लेस देन 2. मोर मतलब 2 से ज़्यादा. क्लियर. x more than 2 because at 2 function is not defined. At x is equal to 2, I'm sorry, x is equal to function is not defined. Clear. So we have to find what does limit mean. Limit का मतलब आपको निकालना क्या है? बाबा समझिए, आपको निकालना लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू. इसका मतलब क्या कि यदि x 2 के बहुत पास आए तो एफ एक्स किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है. पहले क्वेश्चन समझिए. क्वेश्चन ये कह रहा है अगर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी. लिमिटिंग वैल्यू एफ एक्स मतलब व्हाट वैल्यू विल एफ एक्स, क्या एफ एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करेगा यदि x 2 के बहुत पास आए. तो मैं 2 के बहुत पास आने की कोशिश कर रहा हूं. पहले मैं 1.9 पे था, फिर मैं 1.95 पे आया हूं, 1.99 पे आया हूं. क्लियर. तो व्हाट इज दिस? आई एम ऑल दिस एरिया व्हाट? समथिंग व्हिच इज लेस देन 2. दिस होल एरिया, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंडेड लिमिट. तो अभी हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंडेड लिमिट. लेफ्ट हैंडेड लिमिट मतलब व्हेन आई एम अप्रोचिंग, क्लियर, x approaching 2 but from the left मतलब any area in an interval which is what? Less than 2. Clear. But very close to 2. Less than 2 but very close to 2. तो इसको बोलते हैं कंप्यूटेशन लेफ्ट हैंड लिमिट. क्लियर. तो अब ध्यान देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एक था. अब देखिए 1.99 थोड़ा और पास आते हैं तो क्या होगा बताइए. 1.999. सोचिए 1.999. अब देखिए x अगर 2 है और x अगर 1.999 है तो बहुत डिफरेंस कम हो गया. कितना डिफरेंस हो गया? 0.001 माइनस 0.001. यस और नो. नाउ कमिंग वेरी क्लोजर टू. तो व्हाट आई गेट हियर, क्या निकालूंगा मैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी 1.999 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.999 माइनस 2 एंड यू विल गेट दिस एज 3.999. व्हाट यू आर गेटिंग. एंड नाउ सी. क्लियर. नाउ सी दिस half. So this was what when you are approaching this. Now let's take x as 2. Now अब हम यहाँ पे 2 है. क्लियर. क्लियर. यहाँ पे 2.1 है. फिर बीच में क्या होगा? 2.05, 2.01 and so on. More closer to from the right. तो अब 2.1 और हम देखते हैं एफ एक्स क्या होगा. What is f x? Again x square minus 4 upon x minus 2 provided x is not equal to 2. क्लियर. तो 2.1 पे हमको आ रहा है 4.1. क्लियर. फिर 2.01 फिर कितना आ रहा है? 2.01 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2.01 माइनस दिस. तो यहां पे आएगा 4.01. क्लियर. फाइन. ओके. Then 2.001. Now very closer to I have come. Very closer to. So what I'll get? 4.001. So if I write this clear now, so when I'm getting 2.1 clear, which is quite close to 2 but not much close, I'm getting fx what? 4.1. When coming more closer, मुझे 4.01 मिल रहा है. ध्यान से कीजिएगा. When I'm coming more closer to 2.001 which is very very close to 2. So what I'm getting? 4.001. तो देखिए ध्यान से जैसे जैसे हम x को अब देखिए 1.9 से हम कहाँ चले? 1.999 जो कि एक 2 से बहुत पास है. 1.999 यहाँ पे है बहुत पास. हम आपको दिखा नहीं पा रहे क्योंकि बहुत पास है. क्लियर. उसी का 2.001 यहाँ पे है. तो क्या लग रहा है एफ एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है? 3.999. जब आपका x 1.99 तो एफ एक्स क्या है? व्हाट इज एफ एक्स? बराबर समझा रहा है. एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इसकी वैल्यू. अब जब 2 के बहुत पास आए, राइट से आए, राइट से मतलब ग्रेटर देन 2, तो कितना आ रहा है? 4.001. तो व्हाट इज, क्या लग रहा है एफ एक्स कहाँ पे अप्रोच कर रहा है? 4. यस, दो इट इज नेवर 4 but 3.999 is very close to 4. Similarly 4.001 is very close to 4. So we say that
if you see this data, so we can say that therefore limit fx x tending to 2 is what 4. What does this mean? This means that, इसका मतलब क्या हुआ? This means that, I repeat, मैं समझा रहा हूं, this means that as x approaches, मतलब बहुत पास आ रहा है किसके? 2, clear? Value 2, fx will be very near to very near to what? बताइए 4. यही तो मतलब हुआ. Are you getting it? Clear? तो हमने यहाँ पे दो चीज निकाली थी. ध्यान देखिए, जब मैं लेफ्ट से आ रहा था, वी कॉल इट लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एफ एक्स. देखिए ध्यान दे, एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस मतलब जब हम 2 माइनस का मतलब ये हुआ कि ये 2 है, 1.999 हम बहुत पास थे, थोड़ा हम दूर थे 1.99, फिर 1.95 और 1.9. क्लियर? तो ये हम जो निकाल रहे थे वो लेफ्ट हैंड लिमिट का. 2 माइनस का मतलब व्हेन यू आर कमिंग क्लोजर टू बट यू आर व्हाट जस्ट लेस देन 2. तो ये लिमिट एफ एक्स इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज व्हाट 4, एंड दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंडेड लिमिट LHL. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या था? लिमिट क्या? लिमिट एफ एक्स सी, लेट मी राइटिंग अच्छी कर दूँ. यस, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस मतलब अब आप 2 से, अभी आपने टेबल देखी थी, जब मैं 2 से पे था 2.1 पे, तो एफ एक्स कितना था? 4.1. जब x 2.01 था तो एफ एक्स कितना था? 4.01. जब x 2.001 वेरी नियर टू 2 मतलब फ्रॉम द राइट, तो एफ एक्स कितना? 4.001. तो यहां पे क्या ये राइट हैंड लिमिट बोलते हैं इज इक्वल टू व्हाट इज दिस 4. क्लियर? तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है, किसी भी फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर? मैं अभी आपको एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा. आई रिपीट, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द लेफ्ट हैंडेड लिमिट एग्जिस्ट, द राइट हैंडेड लिमिट ऑल्सो एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल. क्लियर है? सो वी से दैट, एंड आई विल राइट दिस. लिमिट, मैं तो अभी रिमार्क लिख रहा हूं, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू पॉइंट ए exists if and only if क्या? नंबर 1, लेफ्ट हैंडेड लिमिट exists मतलब दैट इज क्या? अगर हम लिमिट एफ एक्स निकाल रहे हैं, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए माइनस मतलब अ पॉइंट वेरी क्लोज टू ए बट फ्रॉम द दिस इज, ठीक है, इज इक्वल टू मान लीजिए L1 मान लीजिए. नंबर 2, सेकेंड कंडीशन क्या है? अगर राइट हैंड लिमिट भी है तो RHL ऑल्सो एग्जिस्ट, यानी लिमिट एफ एक्स क्या? एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, जब आप ये क्या है L2 मान लीजिए, कोई वैल्यू L2 है, लिमिट एफ एक्स. एंड थर्डली वेरी इंपॉर्टेंट क्या? कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. क्लियर? दैट इज व्हाट L1 इज इक्वल टू L2. क्लियर? तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट जो भी L1 है और राइट हैंड L2 दोनों बराबर हो, जिसको मान लिया हमने बोल दिया L. क्लियर? L1 L2 बराबर, इसको हमने वैल्यू L बोल दिया. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे. अच्छा, ये भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो इसका लिमिट एफ एक्स नहीं एग्जिस्ट करेगा. दोबारा समझा रहा हूं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट ऑफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट द पॉइंट ए. एट द पॉइंट ए लिमिट एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. सिमिलरली अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट करता है, तो भी ये लिमिट एग्जिस्ट हो सकता है, दोनों एग्जिस्ट करते हो.
लेफ्ट हैंडेड भी और राइट हैंड, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, यानी L1 और L2 बराबर नहीं है, तो वी से दैट लिमिट fx डज नॉट एग्जिस्ट। यानी इनमें से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, नॉट ट्रू, तो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? तो इसका ओके। नाउ सपोज आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, एग्जाम्पल 2। सपोज किसी निकाला, अब बोला कि यार लिमिट fx, उसने निकाला x टेंडिंग टू 3 माइनस कोई फंक्शन का निकाला, और उसने कहा कि यार ये तो सपोज 4 था, उसने निकाल लिया है या दिया डेटा, और लिमिट fx x टेंडिंग टू व्हाट 3 प्लस मतलब जस्ट क्लोज टू 3 बट x ग्रेटर देन, ये आपका 1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 4, राइट हैंड लिमिट क्या है 1, लेकिन दोनों बराबर हैं नहीं। Therefore limit fx x tending to 3 does not exist। क्यों? इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंडेड लिमिट 3 से जस्ट पहले, इसका मतलब क्या कि 3 से जस्ट पहले, क्लियर? ओके, अगर आपका ये 3 है तो 3 से जस्ट पहले फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? fx, बताइए fx किसको अप्रोच कर रहा है? 4 को। और 3 से आगे यानी है ना गेटिंग इट 3.01 3.001 001 3.01 3.1, यहाँ पे fx क्या अप्रोच कर रहा है बताइए? fx किसको अप्रोच कर रहा है? 1 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 4। सो द लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, यानी कंडीशन 1 भी सैटिस्फाइड 2 भी, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ टेल मी, लेट मी गिव यू वन वेरी गुड एग्जांपल। यहाँ देखिए, एक नीचे एक एग्जाम्पल है, मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि क्लियर है। fx ऐसे डिफाइंड है x माइनस 2 0 और x प्लस 2। ये कब है? जब x लेस देन 0 है। ये कब है? जब x एग्जैक्टली 0 है। और ये क्या है? जब x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्लियर है? तो अब ध्यान देखते हैं, अगर x मेरा लेस देन 0 ध्यान से नीचे, मतलब -0.1 ले लूँ, -0.1, मैंने देखिए यहाँ टेबल प्लॉट किया, समझा भी रहा हूँ। लेस देन 0 मतलब ध्यान देखिएगा, ये 0 है, ये -0.1 है, थोड़ा सा और क्लोज आएंगे -0.01 है, थोड़ा सा और क्लोज आएंगे -0.001 है। ठीक है, अब इधर आते हैं, थोड़ा सा दूर है 0.1 है, थोड़ा सा और क्लोज आए 0.01 है, और क्लोज आए 0.001 है। और fx जब 0 है तो x क्या है? 0 है। ये जब x 0 है तो fx यहाँ पे 0 है। ये 0 मतलब ये वैल्यू ऑफ fx है, fx लिख देता हूँ, ध्यान देखिएगा। क्लियर? क्या लगता है अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, जैसे फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन कैसे डिफाइंड है? यदि x 0 से कम है तो फंक्शन x माइनस 2 है, 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन क्या है? x प्लस 2 है, और 0 एग्जैक्टली इस फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। ओके, लेट्स सी वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, और है तो कितनी है? क्लियर? तो x को हमने 0 से पास आया, माइनस पॉइंट रखा, तो क्या ये -0.1 -2 कितना होगा? -2.1। तो और पास आते हैं इस पे, -0.01 -2 -2.01 -0.001 -2 -2.001। अब राइट से आते हैं, राइट से मान लो x 0.1 है, ठीक है, 0.1 है, तो ये कितना होगा? 2.1। और क्लोज आते हैं, 0.01 हो जाए तो 2.01 + 2 2.01। और क्लोज आते हैं 0.001 विच वेरी क्लोज टू 0, क्या है? 2.001। क्या लग रहा है कि ये अप्रोच, तो इसका लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि एज यू आर मूविंग फ्रॉम द राइट, लिमिट कहाँ पे अप्रोच कर रही है? 2 पे। लेकिन जब लेफ्ट से आ रहे हैं तो लिमिट कहाँ चल रही है? लिमिट कहाँ आ रही है बताइए? -2 पे। सो वी सी दैट व्हाट इज लेफ्ट हैंडेड लिमिट? हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज, ध्यान देखिए, लिमिट fx x टेंडिंग टू 2 माइनस, एंड व्हाट इज दिस? क्लियर? -2, देखिए -2.0 ये सर लिमिटिंग वैल्यू, तो -2.001 एंड सो ऑन। और राइट हैंडेड लिमिट क्या आ रही है? एज यू आर अप्रोचिंग 0, लिमिट fx, बताइए, x टेंडिंग टू 2 प्लस मतलब वेरी क्लोज टू 2, आई एम सॉरी,
आई एम सॉरी, यहाँ पे 0 है, आई एम सॉरी, 0 पे लिमिट निकालनी थी, सॉरी, 0 प्लस, सॉरी, आई जस्ट सॉरी। तो x जब हम 0 के बहुत पास आ रहे हैं, 0 के बहुत पास आ रहे हैं, और लेफ्ट से देखिए -0.001 आपका ये जो 0 के बहुत पास है, तो लिमिट क्या आ रही है, और -2.001, ये सब धीरे धीरे करते आप -2 के क्लोज आ रहे हैं, तो लिमिट fx इज अप्रोचिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट fx इज -2, तो एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट, fx will approach the value -2, but as x tends to 0 from the right, see the table of values, 0.1 पे 2.1, 0.01 पे 2.01, 0.01 पे 2.0, अब 0.0001 कर दें, मान लीजिए हम 0.0001 कर दें तो क्या हो जाएगा 2.0001, और क्लोज आ गए 2 से, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट क्या होगी बताइए, ये क्या होगी +2। अब बताइए दोनों वैल्यूज बराबर हैं, नहीं। तो वहाँ ध्यान देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल ये है कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या है -2, राइट हैंडेड लिमिट क्या है +2, और दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या, कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन क्या है -2। राइट हैंड लिमिट हाँ एग्जिस्ट कर रही, कितनी है +2, देख लीजिए है, बट क्या ये दोनों बराबर है -2, जी नहीं। देयरफॉर लिमिट fx x tending to what 0 does not exist, why, because does not exist, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता बताइए, बिकॉज क्या लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी जैसे जैसे आप 0 को अप्रोच कर रहे थे लेफ्ट से तो वैल्यू -2 पे आ जा रही है, लेकिन जब राइट पे अप्रोच कर रहे हैं, राइट से 0 के आगे, राइट मतलब क्या x ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू कन्वर्ज कहाँ कर रही है, कहाँ कन्वर्ज कर रही है +2 पे, देखिए। देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो व्हाट वी से, तो फाइनली हम क्या लिखते हैं, फाइनली हम ये लिखते हैं क्या, इन दिस केस दिस एग्जाम्पल लिमिट क्या fx विच इज डिफाइंड एज फॉलोज, x टेंडिंग टू 0 does not what exist, clear है। now let me tell you some properties and some theorems of limit, clear, okay। now which is also called as algebra of limits or properties operations on limits, algebra of limits। पहला ये कि अगर मान लीजिए यहाँ लेट fx, gx be two functions, be two different functions, be two defined functions, मतलब defined है, defined functions, clear, okay, and suppose both क्या लिमिट fx x टेंडिंग टू पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते, कोई भी वैल्यू a, एंड लिमिट gx x टेंडिंग टू अगेन सेम पॉइंट a एग्जिस्ट, मतलब दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्लियर है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, हमने क्या करा, लेट fx gx बी टू डिफाइंड फंक्शंस सच दैट लिमिट fx x टेंडिंग टू a भी एग्जिस्ट करता है, लिमिट fx x टेंडिंग टू सॉरी gx, डिफरेंट gx के अलग फंक्शन है, क्लियर, ऑन द डिफाइन सेम सेट ऑफ रियल नंबर्स, और x टेंडिंग टू a सेम पॉइंट पे इसकी लिमिट है। चलिए हम मान भी लेते हैं कि लेट की लिमिट fx, ठीक है, x टेंडिंग टू a इज व्हाट, सपोज L1, और लिमिट fx सॉरी gx, सेकेंड फंक्शन लिमिट gx x टेंडिंग टू a, ये भी एग्जिस्ट करती है, और ये है L2, clear। then we have the following things, clear, okay, fine। क्या है पहला, क्या लिमिट ऑफ व्हाट fx प्लस gx, अब fx प्लस gx दोनों fx gx हम ऐड कर रहे हैं और फिर लिमिट निकाल रहे हैं x टेंडिंग टू a, सो दिस विल बी व्हाट लिमिट fx प्लस लिमिट
क्या gx, इसका मतलब लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शन x टेंडिंग टू a, यहाँ पे x टेंडिंग टू a, तो इसका मतलब लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस, लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस एट अ पॉइंट a is nothing but the sum of the limiting values, sum of the limits, sum of the, I repeat, limit of the sum of two functions at a point a is simply equal to the sum of the individual limits. तो ये लिमिट एफ एक्स क्या हमने बोला, यानी L1 प्लस L2, क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि ये लिमिट L1 है, ये लिमिट L2 है. सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी, ये तो प्रॉपर्टी 1 है, सेकेंड प्रॉपर्टी है क्या, लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, सेम आपकी डिफरेंस कर रहे हैं, एक्स टेंडिंग टू ए, ये क्या होगा, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए माइनस लिमिट जी एक्स एक्स टेंडिंग टू ए. क्लियर है, तो ये एक्स टेंडिंग टू ए, यानी अगेन डिफरेंस ऑफ लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस ऑफ दियर इंडिविजुअल लिमिट्स. यानी ये L1, ये हमने क्या बोला था, L1, ये लिमिट L1 बोला था, ये लिमिट, यानी क्या हो जाएगा L1 माइनस L2. क्लियर है, व्हाट इज L1, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए, व्हाट इज L2, लिमिट जी एक्स एक्स टेंडिंग टू ए. इन दोनों, सो यानी डिफरेंस, सम डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन का जो लिमिट होता है एट अ पॉइंट ए इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स. थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड, लिमिट of the product of two functions, again see, very good, limit of the product of two functions again at a point, suppose a is nothing but limit of fx x tending to a multiplied by limit of gx, I repeat, limit of gx x tending to a, यानी ये क्या हो जाएगा L1 मल्टीप्लाइड बाय L2. क्लियर है, अब ये आपकी प्रॉपर्टी 3 है. अब फोर्थ प्रॉपर्टी है क्या, लिमिट ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, क्वोशंट ऑफ टू फंक्शंस और डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, एक्स टेंडिंग टू ए इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट एफ एक्स अपॉन लिमिट क्या, जी एक्स एक्स टेंडिंग टू ए, ऑब्वियसली, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2. ऑब्वियसली यहाँ पे एज्यूम किया है कि L2 इज नॉट इक्वल टू 0, अज्यूमिंग दैट लिमिट gx x टेंडिंग टू a इज नॉट 0. तो प्रोडक्ट ऑफ द क्वोशंट ऑफ द लिमिट्स और डिवीजन ऑफ द फंक्शन ऑफ द डिफाइंड का लिमिटिंग वैल्यू तभी डिफाइंड होगा जब लिमिट gx x टेंडिंग टू a 0 नहीं है. क्लियर, ओके. एंड लास्टली, शुड आई नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी, that suppose I say some function constant k multiplied by fx, clear, like, and I want to find the limiting value where k is the constant, limit x tending to a, and I want to k is the constant, any real number, no positive or negative, whatever. So this is what, k multiplied by limit of fx x tending to what, sorry, x tending to a. क्लियर है. इसका अलावा कोई पूछता है, मान लीजिए कोई किसी ने बोला कि लिमिट एफ एक्स, मान लीजिए एक्स टेंडिंग टू से वैल्यू 3, ये है 5, तो लिमिट ऑफ, ठीक है, 4 इंटू एफ एक्स कितना होगा, 4 एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 3, तो ये क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 3, यही प्रॉपर्टी कहता है, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 20. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4. ध्यान देखिए क्वेश्चन, क्लियर, इज नॉट ईजी एज इट सीम्स टू बी. क्लियर, लिमिट आपको निकालना है x टेंडिंग टू. देखिए कई बार बच्चे क्या स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो x को 2 डाल, अगर आप 2 को डालेंगे, देखिए यहाँ पे x अप्रोचेस टू, x तभी 2 है नहीं, x इज अप्रोचिंग 2, यानी x could be 1.9, 1.99, 1.999, 2.01, समथिंग वेरी क्लोज टू 2 बट नॉट 2. क्योंकि अगर आप x को 2 डालते हैं तो क्या आएगा बताइए, अगर हम चलिए हम थोड़ी देर के x को 2 डालते हैं तो f ऑफ 2 जिसको बोलते हैं, क्या होगा, 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2
बहुत बच्चे कई बार यही गलती कर देते हैं और कहते हैं कैसे निकलेगा। तो ये क्या होगा 8 माइनस 2 स्क्वायर क्या होगा 4 × 4 16 प्लस 8 अपॉन 4 माइनस 4, तो ये तो 0/0 हो गया। तो फंक्शन 2 पे डिफाइंड है ही नहीं। ले तो इसका मतलब अगर आपने x को 2 बस सिंपली डाल दिया तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं है, तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं 2 पे। आर यू गेटिंग इट? तो इसीलिए पूरा लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू मतलब ऑब्वियस ही बात, इसका मतलब कि अगर x 2 को अप्रोच करे तो आपको क्या लगता है ये पूरा एफ एक्स जो कि ये है कि किसको अप्रोच करेगा। समझ आ रहा है? क्लियर? आप बताइए, इसको ध्यान देखिए, इसमें x कॉमन है, हाँ है ना, देखिए ध्यान से। तो x² माइनस 4x प्लस 4, ये सुनो अगर मैं x कॉमन ले लूँ, क्लियर है? और यहाँ पे क्या है x² माइनस 4, क्लियर? लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ देखिए x टेंडिंग टू, x 2 नहीं है, x इज नॉट 2, क्लियर? इस x इज अप्रोचिंग टू बट इज नेवर 2, यानी x इज नॉट इक्वल टू 2। अगर x 2 नहीं है इसका क्या कि x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। इसका लगा ये x माइनस 2 आता है तो मुझसे डिवाइड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब x 2 नहीं है इसका लगा क्या x इज नॉट इक्वल टू, x इज अप्रोचिंग टू, तो x माइनस 2 क्या होगा 0 होगा? नहीं, क्योंकि जब x 2 होगा तभी ना x माइनस 2 0 होगा। तो इसका x माइनस 2, अगर x 2 नहीं है तो x माइनस 2 क्या होगा 0 नहीं होगा। क्लियर है? तो अब बताइए, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, हम अलजेब्रा यूज करेंगे, देखिए ध्यान से। हाँ तो क्या होगा x इंटू ये क्या होगा x माइनस 2 का स्क्वायर होगा, ये सुनो, क्लियर? देखिए x माइनस 2 का स्क्वायर है, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 अपॉन व्हाट इज दिस x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, इस पूरे की लिमिट x टेंडिंग टू 2। अब बताइए x माइनस 2 से मैं डिवाइड कर सकता हूं ऊपर नीचे, क्लियर है? ओके, तो एक x माइनस 2 काट दिया, क्लियर है? ओके, तो व्हाट इज दिस लिमिट, हाँ x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, x टेंडिंग टू। अब बताइए अगर x 2 के आसपास जाएगा तो ये क्या होगा, अब 2 को डालिए क्योंकि अब तो x 2 तो है, जस्ट एज x अप्रोचेस 2, अब आप डाल सकते हैं एज x अप्रोचेस 2, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस 2, आई रिपीट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2। अब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, ये क्या होगा 2 इंटू 0 अपॉन 4 यानी 0। Are you getting it? So as x approaches to, I am saying as x approaches to, clear? तो जब x 2 को बहुत क्लोज हो जाएगा तो x माइनस 2 किसके क्लोज हो जाएगा 0 के। Are you getting it? So now I can put x will what nearly very nearly equal to 0 and 0 multiplied by anything. So इसका क्या, तो इसका लिमिट क्या हो गया 0। So answer is what 0। क्लियर है? ओके, now one more question. Fine. The next question is that find limit, let me see, x square minus 4, limit x square minus 4 upon x cube minus 4x square plus 4x, x cube minus 4x square plus 4x, x tending to 2। क्लियर है? ओके, आई जस्ट चेंज द क्वेश्चन बिकॉज ये तो उसी टाइप का हो गया। आई जस्ट चेंज द क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये ठीक है, क्लियर? एंड x टेंडिंग टू 2। अब ये लिमिट निकालनी है, तो बताइए, ध्यान देखिए, लिमिट ये क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन हो सकता है, ये सर नो, हाँ, तो क्या होगा x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बस ध्यान देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रफ में निकालते हैं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x से फैक्टर्स निकाल रहे हैं, माइनस 3x प्लस 6, तो क्या होगा x इंटू एक्स माइनस 2, ये फैक्टर्स निकाल रहे हैं जैसे आपने 10th में 9th में पढ़ा था, क्लियर? तो दिस इज व्हाट x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3। ध्यान देखिए, मैं दोबारा समझा रहा हूँ,
ये क्वेश्चन है, इसका लिमिट निकालना है x टेंडिंग टू एक्स क्यूब माइनस 2x² अपॉन दिस एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 फैक्टर्स, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्या लग रहा है यहाँ देखिए, क्या लग रहा है आपको, बात आइए ध्यान से, x अप्रोचिंग टू, x इज नॉट इक्वल टू, इट जस्ट अप्रोचिंग टू, सो इफ x अप्रोचेस टू, अप्रोचिंग टू नियरली, सो इज इट x2 है, नहीं है, एग्जैक्टली 2 नहीं है, इसका मतलब जो एग्जैक्टली x2 नहीं है तो इसका मतलब x माइनस 2 को तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, वाई, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 2। तो व्हाट इज दिस लिमिट ऑफ व्हाट, बताइए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स टेंडिंग टू 2। अब आप डाल दीजिए यहाँ पे 2 को, अगर एक्स टेंडिंग टू क्या होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 4 अपॉन -1 यानी -4। So now let us solve this question that compute the limit of, find limit, okay, x cube minus a cube, x cube minus a cube upon x square minus ax containing, I repeat, x cube minus a cube upon x square minus x, x tending to a. If you see this, now this will be what, limit, if I see this I can take x common, x cube minus a cube, x minus a, x square plus ax plus a square, clear, because a cube minus b cube is nothing but a minus b into a square plus ab plus b square, okay, and divided by, what is this common here, x square minus ax, तो इसमें क्या कॉमन है x, x माइनस a एंड x टेंडिंग टू a, c, सी, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या होगा x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में x कॉमन, x माइनस a, नाउ x इज टेंडिंग टू a, रिमेंबर दैट x इज टेंडिंग टू a यानी x इज नेवर a, सो that means that x minus a is not 0 because x is approaching a but x is never a, so we can divide x minus a on both sides, numerator and denominator. If we cancel out this, what it becomes, limit x square plus ax plus a square divided by x, x tending to a. Now see, clear, तो क्या है यहाँ पे आप a को आप डाल सकते हैं, तो ये क्या होगा x square a square plus a into a plus a square divided by a, putting x equal to a, limit x, okay, so what is this, 3a square upon a यानी 3a, clear, that's all. Now next, now before I proceed further, let me tell you there are two formulas which are very important, clear, because this will help you out. X to the power of n minus a to the power of n is equal to x minus a multiplied by x to the power of n minus 1. See, I'll tell you what is the trick of it. X minus a, x to the power of n minus 1 into a to the power of 0 plus x to the power of n minus 2. अब इसके पावर्स x से घटते जाएंगे और a के बढ़ते जाएगा, a to the power 1. Then plus x to the power of n minus 3, a to the power of 2 plus dot 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 plus, क्लियर। अब देखिए ध्यान से a को किससे मल्टीप्लाई करिए, a टू द पावर ऑफ n आई, बताइए, a टू द पावर n माइनस 1, तो लास्ट टर्म इज व्हाट, x टू द पावर 0 a टू द पावर ऑफ n माइनस 1, दैट मीन्स दैट इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, प्लस इससे जस्ट पहले x टू द पावर 1 a टू द पावर ऑफ n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस, सो आई रिपीट, what is x to the power n minus a to the power n, x minus a, x to the power n minus 1, a to the power 0 यानी ये x to the power n minus 1 हो गया, प्लस x to the power n minus 2 a to the power 1 प्लस x to the power n minus 3 a to the power 2 प्लस डॉट 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 प्लस x to the power 1 a to the power n minus 2 प्लस x to the power 0 a to the power n, ये देखिए यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ध्यान देखिए यहाँ पे x क्यूब माइनस a क्यूब का अगर आप n को 3 रखें तो क्या होगा, x माइनस a, x to the power n minus 2 यानी x स्क्वायर, a to the power 0 यानी 1 x स्क्वायर प्लस x to the power of what
3 माइनस 2 यानी एक्स टू पावर 1, ए टू पावर 1 देखिए ax प्लस एक्स टू पावर ऑफ, नाउ सी आर गेटिंग इट, तो n बस 3 है, उससे ज़्यादा नहीं, तो इसका अलग क्लियर। सो सिमिलरली एक्स टू पावर n प्लस ए टू पावर n, ये देखिए ये इंटरेस्टिंग है, दिस इज मोर डिफिकल्ट ऑल्सो, एक्स टू पावर x प्लस a इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1, यहाँ पे ऑल्टरनेट होगा क्लियर, इंटू एक्स ए टू पावर 0 माइनस, अब यहाँ पे पहला टर्म प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा एंड सो ऑन, ऑल्टरनेट, माइनस एक्स टू पावर n माइनस 2 a टू पावर 1 प्लस एक्स टू पावर ऑफ n माइनस 3 a टू पावर ऑफ 2, गॉट इट। ऐसे से देखिए एक प्लस है, फिर एक माइनस है, फिर एक प्लस है, फिर अगला माइनस होगा एंड सो ऑन, प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 a टू पावर ऑफ n माइनस 1, क्लियर, आर यू गेटिंग इट। तो a टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 टू पावर ऑफ n माइनस 1, सॉरी n माइनस 1, क्लियर है, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट फाइंड x टू पावर 5 प्लस a टू पावर 5, इसको खोलिए तो क्या होगा, x प्लस a, यस, देखिए n को 5 रखना है, x टू पावर 4 a टू पावर 0 यानी 1, अब सॉरी नेक्स्ट टर्म नेगेटिव होगा और x का पावर कम होगा, a का बढ़ेगा, आई रिपीट x पावर a टू पावर 0 यानी a टू पावर 0 क्या होगा 1, तो अब x क्यूब हो गया और यहाँ a, क्लियर, देन x स्क्वायर a स्क्वायर, देन दिस इज प्लस, ये बीच में प्लस है, अब क्या होगा माइनस, देन x a क्यूब, और अब देखिए ध्यान से x कम पावर कम होते थे, अब x टू 0 जो a क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा a टू पावर 4, सी वेरी क्लियर, लास्ट टर्म क्या है प्लस व्हाट a टू पावर 4, क्लियर है, गॉट इट। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो यूज इन मैथमेटिकल इंडक्शन, ऑल्सो इन बायनोमियल थ्योरम ऑल्सो यूज होता है, और यहाँ इस चैप्टर में लिमिट्स में भी है। मैं दोबारा से समझा रहा हूँ कि जब आपके पास, देखिए ध्यान से इसको कैसे समझना है, कैसे इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग हाउ टू मेमोराइज इट। एक्स टू n माइनस एट पावर, यहाँ देखिए पावर्स को जोड़िए, n माइनस 1 और 0 कितना होगा पावर n, n माइनस 2 और 1 को जोड़िए n माइनस 1, देखिए n माइनस 1 और 0 n माइनस 1, हमेशा देखिए सम ऑफ द पावर्स विल बी ऑलवेज n माइनस 3 प्लस 2 n माइनस 1, वाई, बिकॉज यहाँ पे x है, x है तो x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, x पावर n आई, x टू n माइनस 1, यानी अब यानी x और a का पावर, फिर देखिए यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 2, a का पावर जोड़िए और x का पावर जोड़िए, 1 प्लस n माइनस 2 n माइनस 1, दिस हाउ यू मेमोराइज, 0 प्लस n माइनस 1 दिस, क्लियर। अब देखिए x टू पावर n प्लस a टू पावर n क्या होगा, x प्लस a, यहाँ बस एक ट्रिक है कि यहाँ पे यहाँ माइनस बाकी सब प्लस है, यहाँ पे क्या है x प्लस a, फर्स्ट टर्म प्लस होगा, दूसरा माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। अब देखिए x टू पावर 5 प्लस a टू पावर 5 क्या होगा, x प्लस a, क्लियर, पहला टर्म क्या होगा, x को किससे मल्टीप्लाई करें, x टू पावर 5 x टू पावर 4 माइनस माइनस, अब x का पावर घटाइए और a का बढ़ाइए, x क्यूब a, फिर प्लस करिए, फिर x का पावर घटाइए और ठीक है 2 करिए और a का और बढ़ाइए, सो ऑन, गॉट इट।